हाय एवरीवन, दिस इज मिस्टर के। आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जनरल नॉलेज सेक्शन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। इधर हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, what are the objectives, what are the tools, and how it works. So let's talk about the monetary policy. Well, monetary policy is the process by which monetary authority of a country, generally central bank, controls the supply of money in the economy to control over interest rates in order to maintain price stability and achieve high economic growth. So in this we are going to say that RBI, which is the monetary authority of India, ठीक है, it's generally it controls the supply of money in the market by using various interest rates, by using various tools. As you can see, there are two different tools. Okay, first of all, let's know what are the objectives of monetary policy. So there are three things: inflation, interest rates, money supply. So the main objective of monetary policy is to control liquidity in the market, to balance the liquidity, to promote maximum employment. Now, how it works? As you can see, that there are two tools of monetary policy, that is quantitative and qualitative, right? We have seen in our exam. I'm just talking related to IBPS or SBA exam, because it's a very vast knowledge when we are gonna read the things. So, but what matters is it should be kept in mind that what is actually important for us for the examination point of view. So as you have seen, if you have already given the mains exam, I have given it twice and thrice. So I know that the most important part is the quantitative tools, because 1 or 2 marks question is always asked from this section, like what is the difference between no sorry what are the different rates. They will ask you maybe a different kind of question, I'm sorry. So मोस्टली क्वेश्चन जो अराइज होते हैं क्वांटिटेटिव टूल से होते हैं. क्वांटिटेटिव टूल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको पता है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि आपकी रेपो रेट की बात की जाए तो द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI, इट इज़ नोन एज रेपो रेट. ओके, रेपो रेट और बैंक रेट अप्रोक्स सेम है. द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरोइंग फ्रॉम RBI फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए लिया जाता है कॉमर्शियल बैंक से, मतलब कॉमर्शियल बैंक लेता है RBI से, सॉरी. सो जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है 90 डेज मैक्सिमम जिसमें होता है वो होता है रेपो रेट, और जिसमें मोर देन 90 डेज होता है वो होता है बैंक रेट. दोनों में क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक ही बोरो करता है RBI से. ओके, ये चीज़ याद रखनी है कि रेपो रेट मैक्सिमम डेज जो होते हैं 90 होते हैं, और बैंक रेट में क्या होता है? मोर देन 90 डेज होते हैं. अभी हमको पता है कि रेपो रेट क्या होता है. रिजर्व रेपो रेट इसका अपोजिट हो गया है. रिजर्व रेपो रेट में क्या होता है? रिजर्व रेपो रेट में जो है आपका आरबीआई जो है बोरो करता है मनी बैंक से. ओके, सो क्यों करता है? RBI यूज दिस टूल when it feels there is too much money floating in the banking system. Okay, so sometimes to control the inflation thing, the RBI use this tool to control the flow of money in the market. So वो क्या करते हैं? बैंक से मनी बोरो कर लेते हैं. और मोस्टली केसेस में क्या होता है ना, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है कि RBI ही ये सारे रेट्स डिसाइड करता है. बट मोस्टली केसेस में क्या होता है, मैंने अभी तक जो नोटिस ही की है कि जब रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट ज़्यादा होती है, मतलब जब जब बैंक RBI से बोरो करता है तो वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता है, और जब RBI बैंक से लेता है तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है.
सो जो रेपो रेट होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी रिजर्व रेपो रेट से। ओके, सो ये हो गए हमारे, हमने यहाँ पे रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट भी कर लिया है। अब बात कर लेते हैं एसएलआर की बात कर लेते हैं। एसएलआर का मतलब होता है स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। सो बैंक हैव टू इन्वेस्ट certain percentage of their deposit in specified financial securities like central government or state government securities. This percentage is known as SLR. So securities are kept in bank. इसमें क्या होता है, बैंक क्या होता है, कुछ जो सपोज दे हैव किसी ने 100 करोड़ रुपीज़ जो है डिपॉजिट किया है, तो उसका जो सपोज 4% SLR है, तो वो जो 4% होगा, आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू विद एन एग्जांपल। तो जो उसका 4% होगा वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए उसे बैंक में कैप करना पड़ेगा, और बाकी का वो इन्वेस्ट कर सकता है, लोन प्रोवाइड कर सकता है। सो दैट इज़ SLR, और ये होता है सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में। अभी आता है CRR। CRR होता है कैश रिजर्व रेशो। CRR में क्या होता है, इट इज़ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट that the commercial bank have to hold as reserve with the central bank। अब इसको सेंट्रल बैंक के साथ कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है। इट इज़ सेट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नाउ CRR। अभी बात कर लेते हैं MSF की। MSF MSF होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इट इज़ अ न्यू विंडो क्रिएटेड बाय RBI इन इट्स क्रेडिट पॉलिसी ऑफ मई 2011। सो ये अभी नया है 2011 में। सो इसमें क्या होता है, ओवरनाइट लोन फैसिलिटी दी जाती है आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को। तो आप एक दिन में लोन ले सकते हैं, एक दिन के लिए भी। सपोज इफ़ यू हैव टू, मतलब ये अर्जेंटली नीड के लिए भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली ले सकते हैं। एंड इसके लिए एक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो आपका बैंक होता है वो करंट अकाउंट होना चाहिए आपका आरबीआई में। फॉर द फैसिलिटी ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मस्ट हैव करंट अकाउंट, तभी उन लोगों को क्या एमएसएफ फैसिलिटी मिलेगी। सो ये है ओवरनाइट लोन फैसिलिटी। सो बैंक एग्ज़ाम्स में मोस्टली क्या होता है ये पूछ लिया जाता है। हाँ, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन द ओपन मार्केट। इट्स वेरी इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। और OMO इज यूज टू वाइप आउट शॉर्टेज ऑफ मनी इन द मार्केट। ठीक है, to influence the terms and structure of the interest rate and to stabilize the market for government securities। So इसमें क्या होता है, शॉर्ट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की सेल कर देता है आरबीआई ओपन मार्केट में। वेरियस रेट्स थी ये, जो कि क्वांटिटेटिव टूल्स के अंडर आती है। अभी बात कर लेते हैं जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं हम लोग के, उसमें सबसे पहले आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या होता है, इट रेफर्स टू रिक्वेस्ट बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक टू टेक सर्टेन मेजर एज पर द ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, RBI may ask banks to not to give out certain loans. It includes psychological means and informal means of selective control, credit control। इसमें क्या होता है, RBI रिक्वेस्ट करता है बैंक से दैट कि अभी मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो आप लोन वगैरह प्रोवाइड मत कीजिए, या फिर इसी तरीके से जो रिक्वेस्ट करता है वो मॉरल सुइजन होता है ना, इसमें रिक्वेस्ट करता है आरबीआई। इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, आरबीआई गिव पनिशमेंट टू द नोटोरियस बैंक्स जो कि उसकी अवहेलना करते हैं, जो भी उन्होंने गाइडलाइंस निकाली है उनको पनिश किया जाता है पैनल इंटरेस्ट से, या फिर उन्हें मनी लैंड नहीं की जाती है। वो उस केसेस में क्या होता है, बैंक्स का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है। सो ये था डायरेक्ट एक्शन जो आरबीआई लेता है एज सिचुएशंस में। फिर बात करते हैं हम लोग क्रेडिट सीलिंग की।
क्रेडिट सीलिंग में क्या होता है, अंडर द क्रेडिट सीलिंग आरबीआई क्या होता है, एक लिमिट रख देता है। आरबीआई इन्फॉर्म्स बैंक टू what extent or limit they would get credit, they would be getting credit. Okay, when RBI imposes a credit limit, the bank will get tight and advancing loans to public. So वो एक लिमिट लगा देगा कि आप इतना कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। फर्दर आरबीआई में ऑल्सो डायरेक्ट द बैंक्स टू प्रोवाइड सर्टेन फ्रैक्शंस ऑफ देयर लोन्स टू सर्टेन सेक्टर्स सच एज फार्म सेक्टर और प्रायोरिटी सेक्टर। और ये लोग प्रायोरिटी बेस पे भी अपनी मतलब कि इस सेक्टर को इतना परसेंट और इधर इस सेक्टर में इतना परसेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस बेसिस पे क्रेडिट सीलिंग होती है। दिस इज द थर्ड क्वालिटेटिव टूल दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इनसाइड द मार्केट, और वन ऑफ द मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गेस कुछ कुछ तो हेल्पफुल हुआ होगा, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं आज ही सबको पढ़ा हूँ। सो जस्ट इग्नोर द मिस्टेक्स एंड थैंक्स।